Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. Today we are going to solve the exercise of chapter Moiz likes reading from New Oxford Modern English Book 1. वीडियो के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो सभी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज विद प्रेयर. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. The first section of exercise is comprehension. Question number 1 is answer the following questions. Question A is what was Moiz doing in the room? कमरे में मोइज़ क्या कर रहा था? The answer for question A is Moiz was reading. मोइज़ मुताला कर रहा था. The next question is question B. What was the time on the clock? घड़ी पर क्या वक्त हो रहा था? The answer of question B is The time was 10 past 5 यानी 5:10 हो रहे थे. Next question is C. Why did Moiz not look at the clock before? इससे पहले मोइज़ ने घड़ी की तरफ क्यों नहीं देखा? The answer for this question is Moiz did not look at the clock before because he was reading an interesting book. उसने पहले घड़ी की तरफ नहीं देखा क्योंकि वो दिलचस्प किताब का मुताला कर रहा था. The next question is D. Why was Moiz a little frightened? मोइज़ थोड़ा सा डर क्यों गया था? The answer is Moiz was a little frightened because he was alone. मोइज़ थोड़ा सा डर गया था क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था. The next question is E. Whom did Moiz call on the telephone? मोइज़ ने टेलीफोन पर किससे बात की? The answer is Moiz called the senior master on the telephone. मोइज़ ने टेलीफोन पर सीनियर मास्टर से बात की. The next question is question F. What did the senior master ask Moiz? सीनियर मास्टर ने मोइज़ से क्या पूछा? The answer of this question is the senior master asked Moiz. senior master ने मोइज़ से पूछा can't you wait till then to read a book? क्या आप उस वक्त तक किताब पढ़ने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते? Next is question G. What did Moiz tell the senior master? मोइज़ ने senior master को क्या बताया? The answer is Moiz told the senior master that he was locked in the library. उसे senior master को बताया कि वो लाइब्रेरी में बंद हो चुका है. The next question is question H. The question is what did the senior master say to Moiz at the end? आखिर में senior master ने मोइज़ से क्या कहा? He said, young man, now you should listen to your elders when they tell you to do something. देखो नौजवान, जब भी तुम्हारे बड़े तुम्हें कुछ करने के लिए कहें तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए. The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 is use these doing words in sentences of your own. हमें जो words given हैं इन सबने sentences बनाने हैं. Words are turned, came, closed, returned, looked, told, missed and locked. तो चलिए sentences बनाना शुरू करते हैं. First sentence is she turned her head to watch him. Next is he came to my house. Third is the door closed? Next is he returned to the airport. Next is she looked puzzled. She told me an interesting story. He missed the target by 2 inches. Last is keep the door closed. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में जानना. Doing words यानी verbs. The underlined words are doing words. ये जो words हमें यहाँ पे underline किए गए हैं वो हैं डूइंग वर्ड्स. दे टेल अस व्हाट द पीपल आर डूइंग. इनसे हमें पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं. रीड दीज सेंटेंसेस. इन जुमलों को पढ़ें. बिलाल ड्राइव्स अ जीप एवरी डे. यहाँ पे ड्राइव्स के वर्ड को अंडरलाइन किया है यानी ये वर्किंग वर्ड है. वर्किंग वर्ड्स को हम वर्ब्स भी कहते हैं. इसके बाद हमें नेक्स्ट सेंटेंस गिवन है रहीम इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ. यहाँ पर इज़ प्लेइंग इज़ वर्किंग वर्ड. नेक्स्ट इज़ yesterday Mr. Smith worked hard. यहाँ पे वर्कड के वर्ड को अंडरलाइन किया गया है. हमारे पास ये वर्ब है. क्वेश्चन नंबर 1 अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से आपने डूइंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. सो द अंडरलाइंड वर्ड्स आर लाइक्स, इज ईटिंग, वेंट, बॉट, पुट, फेल एंड स्क्वैश्ड. On the next page there is the section D of exercise, listening and speaking. Question 1 read the following words carefully and repeat them aloud. इन words को आपने carefully read करना है ऊंची आवाज़ में. ये कुछ words हैं जो कि DR, CR, FR और FL साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. The words are dress, drink, drive, crow, crop, cry, frog, friend, fly,
flew, flat and flap. Question 2 is add these words to the list above. नीचे हमें 4 पिक्चर्स गिवन है, फ्लैग, ड्रॉप, फ्रॉग और क्रैब. इन वर्ड्स का हमने ऊपर जो लिस्ट है उसमें ऐड करना है. डी आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में हम ड्रॉप लिख देंगे, सी आर से क्रैब, एफ आर से फ्रॉग और एफ एल वाले कॉलम में हम फ्लैग के वर्ड को ऐड कर देंगे. इसके बाद हमें एक्सरसाइज का नेक्स्ट सेक्शन गिवन है, दैट इज़ एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लाइक रीडिंग? कि आपको पढ़ना पसंद है? टॉक अबाउट एंड लुक एट सम बुक्स. कुछ किताबों को देखिए और उनके बारे में बात करें. हाउ डू वी टेक केयर ऑफ़ बुक्स? हम किताबों का ख्याल कैसे रखते हैं? और अगर आपको इस टॉपिक पर ऐसे या पैराग्राफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करके मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वी शुड ऑलवेज फॉलो द क्लासरूम रूल्स व्हेन वी आर इन स्कूल. जब हम स्कूल में होते हैं हमें क्लासरूम रूल्स को फॉलो करना चाहिए. पुट अ टिक मार्क विद ईच रूल दैट यू फॉलो. जो भी रूल आप फॉलो करते हैं उस पर आपने टिक मार्क लगाना है. चलिए रूल्स को रीड कर लेते हैं. ए, आई लिसन टू माई टीचर. मैं अपनी टीचर की बात सुनता हूँ या सुनती हूँ. बी, आई पुट अप माई हैंड एंड वेट व्हेन आई वांट टू टॉक. जब मुझे बात करनी होती है तो मैं अपना हाथ ऊपर करती हूँ या करता हूँ, अपनी बारी का इंतज़ार करता हूँ. सी, आई स्पीक पोलाइटली व्हेन आई एम इन क्लास. जब मैं क्लास में होता हूँ तो मैं नरमी से बात करता हूँ. डी, आई लाइन अप व्हेन आई एम वॉकिंग विद माई क्लासमेट्स. और जब क्लासमेट्स के साथ बाहर जाना होता है या वॉक करना होता है तो मैं लाइन बनाता हूँ, कतार बनाता हूँ. आई कीप माई हैंड्स इन फीट टू माई सेल्फ. मैं अपने हाथों और पैरों का ख्याल रखता हूँ ताकि उनसे किसी को नुकसान ना पहुँचे. एफ, आई डू माई वर्क ऑन टाइम. मैं वक्त पर अपना काम करता हूँ. जी, आई पुट माई थिंग्स अवे व्हेन इट्स टाइम टू क्लीन अप. मैं अपनी चीज़ों को दूर रखता हूँ जब सफाई का वक्त होता है. इन सब गिवन रूल्स में से जो भी रूल्स आप लोग फॉलो करते हैं उसको आप टिक मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ऐड मोर रूल्स दैट यू थिंक वी शुड फॉलो इन द क्लासरूम. कुछ और रूल्स बताएं जो आपके ख्याल में हमें क्लासरूम में फॉलो करने चाहिए. एक गिवन है, बी पोलाइट टू अदर्स. दूसरों से नरमी से पेश आएँ. इसके बाद है हेल्प अदर्स. दूसरों की हेल्प करें. टू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें. कीप योर ड्रेस क्लीन. अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें. ये कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए. इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पर एक प्रोजेक्ट गिवन है. ये एक प्रोजेक्ट है स्कूल के फेयर के बारे में. इस पर हम देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें, गेम्स है, म्यूज़िक है, फूड, स्वीट्स, प्राइजेज़, फ़न एट्सेट्रा. टाइमिंग दी गई है हमें और डिटेल्स बताए गए हैं उसके बारे में. इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पर एक और प्रोजेक्ट गिवन है एंड द प्रोजेक्ट इज़ Advertisements are used to tell us about things or to get us to buy things. एडवर्टाइजमेंट यानी इशारात से हमें पता चलता है चीज़ों के बारे में जो हमने ख़रीदनी है. द एडवर्टाइजमेंट ऑन पेज नंबर 78 इज़ टेलिंग अस अबाउट अ फेयर. इस एडवर्टाइजमेंट में हमें एक फेयर के बारे में बताया गया, एक मेले के बारे में बताया गया. इट हैज़ ब्राइट पिक्चर्स ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन बाय और पे टू डू एट द फेयर. यहाँ पे सब चीज़ों की पिक्चर्स दी गई हैं जो आप खरीद सकते हैं या कर सकते हैं पैसे देकर. द वर्ड्स टेल अस अबाउट द फेयर एंड मेक इट साउंड एक्साइटिंग. इन वर्ड से हमें पता चलता है कि फेयर कितना एक्साइटिंग है. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ टॉक अबाउट द पिक्चर्स एंड द वर्ड्स. इन पिक्चर्स और जो उनके ऊपर हमें वर्ड्स गिवन हैं उनके बारे में बात करें. दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू. ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे. ए, व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू एट द फेयर. वो सब चीज़ें क्या हैं जो आप मेले में कर सकते हैं. व्हाट कैन यू बाय टू ईट. आप खाने के लिए क्या खरीद सकते हैं. सी, व्हाट टाइम डज़ द फेयर स्टार्ट. ये फेयर कितने बजे स्टार्ट होगा. हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू गो टू द फेयर. उस मेले में जाने के लिए आपको कितनी प्राइस पे करना पड़ेगी, टिकट कितने का है. ई, इफ़ यू कुड गो टू द फेयर. अगर आप मेले पर जा सकें, व्हाट वुड यू डू फर्स्ट. आप सबसे पहले क्या करेंगे. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. लेकिन अब अगर आपको फेयर के बारे में कोई ऐसे या पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेक योर ओन एडवर्टाइजमेंट फॉर क्लास केक सेल. क्लास केक सेल के लिए आपने एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है. इंक्लूड पिक्चर्स ऐड करें एंड वर्ड भी ऐड करें. टू मेक लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू कम टू द केक सेल. ताकि बहुत से लोग केक सेल में आए. हियर आर सम वर्ड्स यू कैन यूज़. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पोस्टर में या अपने एडवर्टाइजमेंट में. यू कैन ऐड योर ओन वर्ड्स टू. आप अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं. केक सेल ट्यूसडे 3 PM to 5 PM इन द स्कूल हॉल, डिलीशियस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. The answers of these questions are we can play games, listen music, enjoy food, buy sweets, win prizes and get fun in the fair. The next answer is we can buy samosa, jalebi, cotton candy and donut. The answer of question C is the fair starts at 2 PM. Answer D is price of entry ticket is not mentioned. And E, I will play games first.
This was the end of this lecture. Hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.